Hello everyone, welcome to our class of TY BCom 5th semester. Our topic is preparation of final account. Today we are going to solve question number 8. Already we had completed question number 1 to 7 and introduction on balance sheet as well as P&L. As we are preparing final account of companies, all the accounts are going to be prepared in vertical format. Before solving the sum, we should know about the vertical format of balance sheet as well as P&L. So student, please watch the introduction video of balance sheet as well as P&L. So both separate videos are there. Then only you can come to the question and we can solve easily. So let's begin with question number 8. It says that the trial balance of Radhika Limited 31st March 17. Trial balance is given and adjustment is there. In question, student, they are asking to prepare balance sheet only under the schedule number 3. So over here, no need to prepare profit and loss statement. So only balance sheet we are going to prepare in vertical format. So first of all, we are going to prepare note to account, then the balance sheet. Let's tick mark the entry first. Stock 31st March 17. It is your closing stock. It will appear in current assets as an inventory. Fixed asset, directly they had given the information. It will appear under the heading of non-current asset, fixed asset, and we have to consider it is as a tangible assets. Debtor, current assets, trade receivable, staff advance, current assets, short-term loan and advance, because it is on debit side, so it is an assets. Cash on hand and bank balance, both are cash and cash equivalent. It will appear under the current asset heading. Share issue expense, non-current assets, under the heading other non-current assets, 53,200. Bill receivable, again current assets, trade receivable, investment, non-current assets के heading के अंदर non-current investment. शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व भी शेयर होल्डर फंड के हेडिंग में आता है अंडर द हेडिंग ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस. लोन फ्रॉम बैंक यानी लॉन्ग टर्म लोन है आपका, नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग. प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, करंट लाइबिलिटी. नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट और ये P&L दोनों ही रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड होंगे. तो सोर्स ऑफ फंड के हेडिंग में रिजर्व एंड सरप्लस दोनों ऐड करेंगे. इस ओपनिंग बैलेंस एंड दिस इज द करंट ईयर बैलेंस. बेसिकली हम P&L अकाउंट बना के ये करंट ईयर का बैलेंस हम ढूंढते हैं, मगर उन्होंने क्वेश्चन में क्लियर बोला था कि ओनली बैलेंस शीट बनानी है, इसलिए उन्होंने खुद ही आपको करंट ईयर का प्रॉफिट 5,40,000 दे दिया. देन नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म लोन. लोन लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में है तो करंट लाइबिलिटी में जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग. सन्ड्री क्रेडिटर, again current liability, trade payable, unclaimed dividend, again current liability, other current liability. So heading आपको अच्छे से आना ज़रूरी है. हेडिंग के लिए फिर से बोलो इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, आपको सारी हेडिंग मिल जाएंगी. उसमें नोट टू अकाउंट में कौन सी एंट्री आती हैं. एडजस्टमेंट में ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इसके हमेशा बोलो 2 इफेक्ट आते हैं. हमेशा मैक्सिमम सब में आप देखें ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व की एंट्री है, तो इसके 2 इफेक्ट रिजर्व में ऐड करना है और आपके P&L से लेस करना है. तो रिजर्व एंड सरप्लस में ही कैलकुलेशन है, P&L में लेस करोगे, जनरल रिजर्व में ऐड करोगे. एडजस्टमेंट नंबर 2, डायरेक्टर रिकमेंडेड 6% डिविडेंड. रिकमेंडेड यानी प्रपोज किया, दिया नहीं है, पेड नहीं हुआ है, तो एक तरह का प्रपोज है. और प्रपोज भी आपको मैंने हर समय कहा कि इसके लिए कोई एंट्री पास करना नहीं है. Then out of debtor debt due for more than 6 months where 1,04,000. देखो ये इन्फॉर्मेशन है कि भाई डेटर के अंदर आपको बाइफिकेशन करना है, सिंपल वर्ड में. ये भी बहुत बार आया है सब में आपके. तो जब भी ये 6 मंथ वाला इन्फॉर्मेशन आएगा यानी ये बाइफिकेशन है डेटर के अंदर. जो आपका टोटल डेटर है 8 लाख रुपया, इसमें सिर्फ आपको बाइफिकेट करके बताना 8 लाख ही टोटली आएगा, मगर उसमें 1,04,000 6 मंथ का रहेगा और फिर माइनस करेंगे जो भी फिगर आएगा वो अदर डेटर रहेगा. तो इसको इन्फॉर्मेशन कंसिडर करें, एडजस्टमेंट नहीं है. आपको सिर्फ 8 लाख का बाइफिकेशन करके बताना है. 4 है सन्ड्री क्रेडिटर इंक्लूड क्रेडिटर फॉर गुड 2,10,000 while the remaining are for expenses. ये भी एक तरह का इन्फॉर्मेशन है कि भाई 2,10,000 जो आपका क्रेडिटर है उसमें से 2,10,000 गुड्स के लिए
और बाकी का जो कैरेक्टर बच जाएगा वो एक्सपेंस के लिए रहेगा। अगेन आपको बाइफिकेट करना, टोटल क्रेडिटर विल रिमेन 2,80,000 ओनली। खाली आपको बाइफिकेशन करके बताना है कि भाई 2,10,000 गुड्स का है और जो बच गया वो एक्सपेंस का है। फिर लोन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा इज सिक्योर्ड अगेंस्ट स्टॉक। अगेन हमने उसको तो नॉन करंट लायबिलिटी ले ही लिया है लॉन्ग टर्म बोरिंग में, तो अगेन इनसे इंफॉर्मेशन ओनली। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 178, फेस वैल्यू 160 और कॉस्ट है 1,50,000। देखो मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, हमारे बुक में इसका एट प्रेजेंट कॉस्ट किसका है 1,50,000, तो इसके लिए भी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। हमें कॉस्ट से इंपॉर्टेंट है, मार्केट वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है। देन इग्नोर प्रीवियस ईयर फिगर एंड कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, यानी टैक्स तो ही नहीं यहाँ पे, अच्छी बात है। प्रिपेयर बैलेंस शीट एज यूजुअल हम बनाएंगे, तो होप सो क्वेश्चन समझ में आएगा। इसमें जो मेन चीज था आपका डेटर और क्रेडिटर, ये इंफॉर्मेशन रहता है, इसके लिए कोई एडजस्टमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ये भी मैक्सिमम सम में आया है, तो इसको याद रखे बच्चों। तो अब चलते हैं हम लोग, पहले नोट टू अकाउंट बनाएंगे फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे। नोट टू अकाउंट हमेशा शेयर कैपिटल से शुरू करेंगे। तो आपका शेयर कैपिटल पहले आता है 40 लाख का। इसमें बाइफिकेशन शेयर का इंफॉर्मेशन नहीं दिया था, तो 40 लाख को 100 से डिवाइड किया तो कितना है 40,000, तो 40,000 इंटू 100 40 लाख। फिर हमारा आता है रिजर्व एंड सरप्लस, दो एंट्री है हमारे रिजर्व एंड सरप्लस में। पहले जनरल रिजर्व 1,40,000 ओपनिंग बैलेंस कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ये एडजस्टमेंट आपको ऐड करना है 1 लाख का, तो टोटल कम्स टू 2,40,000। सेम वे आपका P&L अकाउंट यानी सरप्लस भी बोलते हैं इसे, ओपनिंग बैलेंस कितना 2 लाख। फिर करंट ईयर का प्रॉफिट आया 5,40,000, ऐड करेंगे 7,40,000। फिर एडजस्टमेंट को आपको माइनस करना है 1 लाख जो आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया था, तो 740 से 1 गया तो 640, टोटल कम्स टू 8,80,000। तो आफ्टर रिजर्व हमारा नेक्स्ट हेडिंग आना चाहिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग 6 लाख का, जो कि आपने लोन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा लिया था 6 लाख का। फिर टैक्स भी आएगा, फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी आएगा, करंट लायबिलिटी 1 लाख, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म लोन 1 लाख। आफ्टर शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्रेडिटर है 2,80,000, क्रेडिटर के ऊपर बाइफिकेशन करना है बच्चों, याद रखें। तो 2,10,000 गुड्स करेगा और रिमेनिंग आपका एक्सपेंस करेगा। तो क्रेडिटर हेडिंग आता ट्रेड पेबल, इसका जो क्रेडिटर फॉर गुड्स है 2,10,000 ये दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, और आपका टोटल है 2,80,000, यानी 2,80,000 में से 210 माइनस करो तो क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस आया 70,000। ये बैलेंसिंग फिगर आया, इसको समझना है आपको। फिर क्रेडिटर के नीचे आता है अदर करंट लायबिलिटी, अनक्लेम डिविडेंड 10,000 का, और कोई लायबिलिटी बच गई है, एक बच गया, इसको भी बना लेते हैं तो आपको क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंगल एंट्री है बच्चों, इसके लिए आप नोट टू अकाउंट बना सकते हैं या नहीं भी बना सकते, आपके ऊपर है। तो फिलहाल हमने बनाया 22,000 का शॉर्ट टर्म प्रोविजन टैक्स के लिए। अब नोट 2 में क्रेडिटर खत्म हुआ, अब डेबिट यानी एसेट साइड चलते हैं। फिक्स एसेट है 24,70,000 का, टेंजिबल एसेट्स कंसीडर कर रहे हैं हम इसको। फिर आपका बैलेंस शीट में फिक्स एसेट के बाद आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये ले लेते हैं 1.5 लाख का, सिंगल एंट्री है। फिर फिक्स एसेट, नॉन करंट एसेट की हेडिंग में फिक्स एसेट आता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और एक है यहाँ पे अदर नॉन करंट एसेट 53,200 शेयर इशू एक्सपेंस। फिर आप नीचे उतरते हैं करंट एसेट्स में, पहले ट्रेड रिसीवेबल ले लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल में 2 एंट्री है, डेटर है और बिल रिसीवेबल है। डेटर के ऊपर एडजस्टमेंट बताया था मैंने कि भाई 1,04,000 6 महीने का है, तो अदर कितना, तो आपका टोटल डेटर जो आपको बैलेंस शीट में दिया है 8 लाख दिया है, फॉर 6 मंथ 1,04,000 है, तो 8 लाख में से 1,04,000 माइनस करो तो आपका अदर डेटर है 6,96,000। ये बाइफिकेशन आपको बताना था डेटर में एज वेल एज क्रेडिटर में, तो इसको समझना है आपको। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल है, बिल रिसीवेबल 1,16,000, दोनों प्लस करें 9,16,000। तो ट्रेड रिसीवेबल होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 2 एंट्री है, कैश इन एंड बैंक बैलेंस 120 और 98, फिर टोटल कम्स टू 11,08,000। और कुछ रह गया, हाँ ये रह गया स्टाफ एडवांस रह गया आपका 1,94,800 का,
तो सारी एंट्री हमने कंप्लीट कर ली हैं और मोस्टली हमने सब नोट 2 में ले लिया है, सिर्फ एक इन्वेंट्री रह गया, वो नहीं लिखा हमने। ठीक है, तो नोट 2 अकाउंट में सिंगल एंट्री है तो लिख सकते हैं, नहीं है तो आप डायरेक्टली बैलेंस शीट में भी बता सकते हैं। तो इन्वेंट्री हम छोड़ देते हैं 10 लाख का, इसको ध्यान रखना 10 लाख बाकी है। तो अब बैलेंस शीट बना लेते हैं वर्टिकल फॉर्म में। पहले हमेशा इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज फर्स्ट पार्ट है शेयर होल्डर फंड, और इसके अंदर सबसे पहले शेयर कैपिटल 40 लाख का, देन रिजर्व सरप्लस 8 लाख 80, देन लॉन्ग टर्म बोरिंग, हेडिंग लिखना है आपको नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग 6 लाख, फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग 1 लाख है, ट्रेड पेबल 280 है, और अदर करंट लाइबिलिटी 10 है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 22 है। तो बहुत सारी एंट्री ध्यान से, शॉर्ट टर्म बोरिंग 1 लाख, ट्रेड पेबल 2,80,000, अदर करंट लाइबिलिटी 10, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 22,000। अब और कोई लाइबिलिटी में पार्ट नहीं है तो आप लाइबिलिटी को प्लस कर दो, तो आपका टैली फिगर आया 58,92,000। और इसी तरह से एसेट्स को कर लेते हैं। एसेट्स में सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, इसके अंदर टेंजिबल एक ही था हमारे पास 24,70,000 का, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी यहीं आता है 1,50,000 का, और अदर नॉन करंट एसेट्स भी यहीं आएगा 53,200। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में बहुत सारे एंट्री हैं, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश इक्विवेलेंट है, शॉर्ट टर्म लोन एडवांस है, और चौथा आएगा इन्वेंट्रीज 10 लाख का। आपको स्टार्टिंग में बताया था मैंने, इसके लिए हमने नोट 2 नहीं बनाया, इसलिए आप ब्रैकेट में बता दे भाई ये क्लोजिंग स्टॉक है। ट्रेड रिसीवेबल 9,16,000, फिर कैश एंड इक्विवेलेंट 11,08,000, और शॉर्ट टर्म लोन एडवांस 1,94,800। अब एसेट्स को भी प्लस कर दो, सिंपल है, टैली फिगर आ गया 58,92,000। सो दिस वे वी हैड कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारा डेटर और क्रेडिटर का बाइफिकेशन। ये इंफॉर्मेशन होता है 6 मंथ वगैरह, आपको अलग से कोई एंट्री पास नहीं करनी, आपको सिर्फ ऑलरेडी जो डेटा एग्जिस्ट कर रहा है उसके अंदर बाइफिकेट करके बता दे। तो होप सो यहाँ तो कोई डाउट नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।